أشهد أن محمدًا رسول الله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے بھائی اور دوستو، محترم بزرگوں، میں حکیم عمر فاروق ساہیوال سے۔ میرے بھائی اور دوستو، آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، خوشخبری سمجھ لیں آپ انگلینڈ والوں کے لیے، یو کے والوں کے لیے، یونائٹڈ کنگڈم والوں کے لیے، کہ وہاں کی ڈیلیوری کھل گئی ہے، پارسل جانا شروع ہو گئے ہیں۔ اور میری سکرین کے اوپر نمبر آ رہا ہے عبد الرحمن بھائی کا، وہ آپ کو یو کے میں ڈیلیوری دے گا۔ اور میرے نمبر بھی اوپر آ رہے ہیں، کسی نے مجھ سے رابطہ پوچھنا ہو، دوائی کے بارے میں کوئی مشورہ کرنا، کوئی پوچھنا، مجھ سے آپ نے پوچھنا ہے۔ اور جو پارسل آپ نے ریسیو کرنے ہیں انگلینڈ سے، یو کے سے، وہ عبد الرحمن بھائی کا سکرین پر انگلینڈ کا نمبر آ رہا ہے، آپ اس سے رابطہ کریں اور انشاءاللہ جو بھی دوائی آپ کو چاہیے وہ آپ کو مل جائے گی۔ اور یہ 40 دن کا کورس ہے، یہ دیکھیں انگلینڈ والوں کے لیے، یہ تھوڑا سا اس موسم میں سردی ہے، ادھر موسم تھوڑا سا ٹھنڈا ہوتا ہے، تو ان کے لحاظ سے، اس ملک کے لحاظ سے یہ میں نے دوائی تیار کی ہے۔ یہ 10 دن کے 4 پیکٹ ہیں، یہ دیکھیں 40 دن کا کورس ہے، 1 2 3 4، یہ پیکٹ 10 دن کے 4 پیکٹ ہیں، یہ دیکھیں۔ اور 40 دن کے بعد پھر تلا ہے، اور تلے کے ساتھ بھی کیپسول ہیں، پھر ایک مجون کی ڈبی ہے۔ اور اللہ کے فضل سے جتنا بندہ مرضی کمزور ہے، جتنا مرضی ویک ہے، اور اپنے آپ کو عورت کے قابل سمجھتا ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے یہ مکمل کورس ہے۔ اور 10 دن کی اپنے آپ کو عورت کے قابل نہیں سمجھتا اور اپنے آپ کو ویک سمجھتا ہے، تھکاوٹ جسم میں، پریشانی، بوجھل پن یہ جسم میں سمجھتا ہے، یہ جو 40 دن کا کورس ہے، اس سے آپ مکمل کلیئر ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ آپ میں تھکاوٹ آ جاتی ہے، پڑھا نہیں جاتا، دماغی طور پر آپ تھکے تھکے رہتے ہیں، اس کورس کرنے کے بعد تھکاوٹ کیا چیز ہوتی ہے، پریشانی کیا چیز ہوتی ہے، آپ اس چیز کو بھول ہی جائیں گے اللہ کے فضل سے۔ اور آپ کی جو مردانہ ٹائمنگ ہے وہ آپ کی تقریباً آدھا گھنٹہ سے 25 منٹ لے کے 45 منٹ تک آپ کی مستقل ٹائمنگ بن جائے گی، جس میں چستی آ جائے گی، ہوشیاری آ جائے گی، کام کرنے کو دل کرے گا۔ اور اس کورس سے سب سے بڑی بات ہے، اللہ آپ کی زندگی 100 سال کرے، یہ کورس کرنے کے بعد آپ کا دل گردہ اتنا سٹرونگ ہو جائے گا، آپ کو کبھی ہارٹ اٹیک نہیں آئے گا، آپ کو گردے کی پرابلم نہیں بنے گی، اتنا گردہ اور دل آپ کا سٹرونگ ہو جائے گا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ مکمل کورس آپ کو، یعنی کہ پاکستانی پیسوں میں اس کا ریٹ ہے 11,000 روپے۔ یہ مکمل کورس، تلا، 40 دن کی دوائی، 12 سے 15 دن کا تلا اور ایک مجون کی ڈبی، یہ پاکستانی 11,000 روپے میں ہے۔ اور اس پر جو ڈیلیوری چارجر لگتے ہیں میرا بھائی، وہ تقریباً 9,000 روپے اس پر ڈیلیوری چارجر ہیں۔ یہ تقریباً آپ کو پورا پاکستانی 20 یعنی کہ 1000 روپے میں بنے گا، پاکستانی 20,000 روپے میں، یعنی کہ آپ کے ادھر کے پاؤنڈ بنتے ہیں 100-110 پاؤنڈ بنتے ہیں، 100 یا 110 پاؤنڈ بنتے ہیں۔ یو کے کے، یونائٹڈ کنگڈم کے، برطانیہ کے 110 پاؤنڈ بنتے ہیں۔ کسی میرے بھائی کو ضرورت ہو کورس کی، جو اپنے آپ کو ویک سمجھتا ہو، عورت کے قابل نہ سمجھتا ہو، اس کی ٹائمنگ کم ہو گئی ہو، اپنے آپ کو تھکا تھکا ٹینشن میں فیل کرتا ہو، اور ہمت حوصلہ کم اپنے آپ میں فیل کرتا ہو، تو میرے بھائی اور دوستو، یہ پہلے دن سے آپ کو دوائی فیلنگ دے گی، اور پہلے دن سے آپ کو اثر ہوگا، اور اندرونی طور پر آپ پہلے دن سے سٹرونگ ہو جائیں گے اور مستقل سٹرونگ ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہو؟ اور کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں، کچھ مجھے بھائی کہتے ہیں کہ آپ پہلے دن سے ایسے اتنے وثوق سے ساتھ شرطیہ کیوں کہتے ہو؟ میں کہتا ہوں کہ میرا بھائی، میں دوائی میں ہیرا پھیری نہیں کرتا، بے ایمانی نہیں کرتا، میری دوائی میں کوئی کیمیکل نہیں، کوئی نشہ نہیں، کوئی ایسی مضر چیز نہیں جو آپ کو نقصان دے۔ اس لیے مجھے اپنے اللہ پہ پورا یقین ہے کہ مجھے الحمدللہ میری دوائی، جو آپ کامنٹ میں پڑھ لیں، ہزاروں کے حساب سے، 100 کے حساب سے کامنٹ ہے میرے، جن بھائیوں میں پاکستان، جنہوں یا دوسرے ملکوں میں دوائی کھائی ہے،
एक कमेंट भी ऐसा नहीं होगा जिस भाई ने दवाई खाई हो और उसने कहा हो कि मुझे असर नहीं हुआ, मैं ठीक नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैं बेईमानी नहीं करता, प्योर देसी जड़ी बूटी, इसमें कोई केमिकल नहीं, प्योर। और जड़ी बूटियों में वो जड़ी बूटियाँ जो बंदे के इंसान को नुकसान नहीं देती, गुर्दे को नुकसान नहीं देती, दिल को ताकतवर करती है, नुकसान नहीं देती, बंदे का पूरा जिस्म। फिर मुझे अल्लाह पे यकीन है कि अल्लाह उसमें शिफा भी डालते हैं। जब मैं बेईमानी नहीं करूँगा, लोगों की मोहब्बत रख के दवाई बनाऊँगा, तो अल्लाह के फजल से अल्लाह उस दवाई में शिफा भी पाएंगे। और बंदे को तगड़ा ही रहना चाहिए, बंदे को हिम्मत वाला ही होना चाहिए। मर्द वही है जो हिम्मत वाला हो, तगड़े वाला हो। और जब बंदे की शावत कम होना शुरू हो गई, समझ लें कि आप बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। अपनी शावत को कभी कम होना ना दे, अपने अंदरूनी तौर पर कभी अपने हिम्मत होने से। बंदा, वो बातें नहीं बनी बंदों की कि बंदा 100 साल की उम्र में बूढ़ा नहीं होता, ये सही बात है। घोड़ा और बंदा बूढ़े नहीं होते, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन बंदा कब बूढ़ा करता है अपने आप को? जब अपनी तवज्जो देना अपने आप पे बंदा ख़त्म कर देता है, तो फिर अपने आप को बंदा बूढ़ा फील करना शुरू कर देता है। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये मुकम्मल पहले दिन से आप इसको लेंगे। सुबह कैप्सूल होगा, शाम का कैप्सूल होगा, साथ मजून की गोली बना के आपने लेनी है। 40 दिन ऐसे होगा, फिर 12 से 15 दिन का तिला होगा जो तनासल की नशोनुमा के लिए। कोई लंबाई में, मोटाई में फ़र्क पड़ गया, वो उसके साथ भी कैप्सूल होगा। वो कैप्सूल जो है रगों को अंदर की तरफ से गर्म करेगा और ऊपर से रगों को वो खोलेगा, तो इंशाल्लाह आपकी शावत फ़ौरन आएगी, आपके अज़ू तनासल की लंबाई मोटाई पूरी हो जाएगी। और जो बाद में मजून की डिब्बी है, वो आपके अंदर अंदरूनी तौर पर आपको मुस्तकिल स्ट्रॉन्ग कर जाएगी, मुस्तकिल ताकतवर कर जाएगी। और इंशाल्लाह ये कोर्स करने के बाद आपको पूरी ज़िंदगी किसी किस्म की दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो शुगर के मरीज़ हैं उनके लिए ये सोने के बराबर है। शुगर वाले मरीज़ के लिए इंतहाई मुजर्रब चीज़ है। और शुगर वाले मरीज़ अपने आप को पहले दिन से कहेंगे वाकई जिस्म में कोई चीज़ आ रही है। तो मेरे भाई और दोस्तों, किसी मेरे भाई को यूके में, इंग्लैंड में, यूनाइटेड किंगडम में किसी को चाहिए तो अब्दुर्रहमान भाई का नंबर ऊपर आ रहा है, स्क्रीन के ऊपर नंबर, आप कॉल करें। और आप यूके में किसी भी जगह पर बैठे हुए हैं, जहाँ भी बैठे हुए हैं, कोरियर की जगह आपको वो दवाई वहाँ पहुँचेगी और 1-2 दिन के अंदर अंदर आपको दवाई वहाँ पहुँच जाएगी। तो मेरे भाई और दोस्तों, यूके वाले, बरतानिया वाले जितने मेरे भाई हैं, जिन्हों को बार बार मुझे फ़ोन करते थे, मुझे कॉलें करते थे, तब कोरोना की वजह से डिलीवरी नहीं जाती थी। अब डिलीवरी खुल गई है, तो मेरा भाई अपने आर्डर लिखवाएं। अगर आप मुझे भी आर्डर लिखवाओगे तो फिर भी मैं उनको आर्डर दे दूंगा और आप वहाँ से दवाई ले लें। और अगर आप अब्दुर्रहमान भाई को फ़ोन करेंगे, वो नंबर उसका ऊपर आ रहा है, तो वो भी आपका आर्डर लिख लेगा और फिर आपको दवाई आपके जहाँ भी आप रहते हो, जिस कोने में भी यूके के जहाँ भी रहते हो, कोरियर के ज़रिए आपको दवाई मिलेगी। और आप दवाई खाएं। और अल्लाह के फजल, जितनी बातें मैं कह रहा हूँ, ये देखें, जितनी बातें कह रहे हैं रिकॉर्ड पे हैं ये। अगर पहले दिन से असर हो, पहले दिन से आपका जिस्म तगड़ा हो, पहले दिन से आपकी शावत ज़्यादा हो, पहले दिन से आप अपने अंदर तब्दीली फील करो, पहले दिन से आपके अंदर से टेंशन, बोझलपन ख़त्म होना शुरू हो जाए और आपकी टेंशन और आपका जिस्म पर खुमार होना शुरू हो जाए, आप अंदरूनी तौर पर तगड़े होना शुरू हो जाएं, आपका जिस्म खुश रहना शुरू हो जाए, तो फिर आप मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह मुझे इस्तकामत आफ़ियत दे। और अल्लाह मुझे जिस काम के मेरा मकसद है, जैसे मैं सोचता हूँ कि यार मेरा मकसद ये है कि लोगों के चेहरों पर खुशियाँ आ जाएँ, लोगों के चेहरे खुश हो जाएँ। पहले ही लोग बड़े परेशान हैं, अपनी टेंशनों में परेशान होते। मेरा ये कोशिश होती है, अल्लाह मुझे इस कोशिश में कामयाब करें कि लोगों को चेहरे पर खुशियाँ आ जाएं। और अक्सर बहनें बेटियां मुझसे फ़ोन करती हैं, मुझे कहती हैं कि मेरे खामन ठीक नहीं है, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी औरत हूँ, औरत को अल्लाह ने मर्द के लिए बनाया, मर्द को औरत के लिए बनाया, अगर इनमें से कोई बीमार होगा तो ज़िंदगी अच्छी नहीं। मुझे कहती हैं कि मेरा खामन ठीक नहीं है और मैं भी इंसान हूँ, मैं भी ज़िंदगी गुजार सकती हूँ, मैं गुनाह नहीं करती, गुनाह से मैं बिल्कुल और मर्द की तरफ नहीं देखती, लेकिन मेरे हस्बैंड को भी मेरे हकूक़ अदा करने चाहिए, अज़दवाजी ज़िंदगी मेरी पूरी करनी चाहिए। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं दवाई भेजता हूँ, वो खुश हो जाते हैं और खुश हो जाता हूँ, मुझे सुकून मिलता है। जब उनके चेहरों पर खुशी देखता हूँ तो मुझे सुकून मिलता है। बे औलाद हज़रात जो हैं, ये 40 दिन का कोर्स है, इससे अंदरूनी तौर पर आपके बच्चे वाले जरासीम ज़्यादा हो जाएंगे और आपकी मनी से तज़ाबित कम हो जाएगी। अल्लाह के फजल से हमल भी बहुत जल्द ठहरेगा, सप्रम बच्चे वाले आपके बहुत जल्दी ऊपर जाएंगे, बहुत जल्दी ज़्यादा होंगे, मोटे हो जाएंगे और इंशाल्लाह हमल भी फ़ौरन ठहरेगा। और जब मियाँ बीवी का बे औलाद 18-18 साल को ऐसे मरीज़ आए, 12-12 साल, 18-18 साल, 20-20 साल हो गए, औलाद नहीं थी, जब उन्होंने दवाई खाई, अल्लाह ने उनको शिवा उनके घर गोद भरी, तो उनके चेहरों पर मुस्कुराहट आती है, जो खुशी आती है वो देखकर मैं भी खुश हो जाता हूँ। ये सबसे बड़ी खुशी है।
तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह मुझे इस खिदमत में कामयाब करे। आप भाइयों की दुआ है, इस्तकामत आफियत अल्लाह मुझे दे। तो फिर जब आप ठीक हो, जितनी मैंने बातें कही हैं, मेरी वीडियो बार बार, ये ख़त्म नहीं होगी वीडियो, बार बार सुने। अगर पहले दिन से आपको जिस्म में फीलिंग आ रही है, जिस्म में ताकत आ रही है, जिस्म स्ट्रॉन्ग होगा, तो फिर आपका हक बनता है आप मेरे लिए इस्तकामत आफियत की दुआ करें। बस ये खिदमत का काम मैंने शुरू किया कि शायद मेरी भी अल्लाह ज़िंदगी बदल दे, मुझे भी आखरत में बख्श दे, मेरी बख्शिश हो जाए अगर मैं लोगों के चेहरों पर रौनक लाता हूँ। तो मेरे भाई और दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड में किसी बंदे को ज़रूरत हो दवाई की, तो अब्दुर्रहमान भाई का नंबर ऊपर आ रहा है, यूके का नंबर, इंग्लैंड का नंबर ऊपर आ रहा है, तो आप उसको कॉल करें, अपना ऑर्डर बुक करवाएं, तो इंशाल्लाह कोरियर के ज़रिए 2 दिन के अंदर अंदर, 1 दिन के अंदर अंदर आपको दवाई आपके इलाके, आप यूके में जहाँ भी रहते हो, आपको वहाँ दवाई पहुँच जाएगी और तरीक़ाकार ऊपर लिखा होगा। तो मेरी दवाई के साथ सिर्फ 3 परहेज़ होती हैं, वो भी मैं आपको बता ही दूँ। अचार, दही और बड़ा गोश्त, ये नहीं आपने खाना। मेरी दवाई जितने दिन दवाई खानी है, बाद में आप खा सकते हैं ताकि दवाई का पूरा असर हो। दवाई आपको मिलेगी 110 पाउंड में, इंग्लैंड में आपको मिलेगी दवाई 110 पाउंड, इंग्लैंड में आपको मुकम्मल 40 दिन। 110 पाउंड में आपको क्या मिलेगा? 40 दिन की दवाई, सुबह शाम का कैप्सूल और 7 मजून की गोली सुबह शाम की। 40 दिन के बाद 12 से 15 दिन का तिला और 1 मजून की डिब्बी, ये आपका मुकम्मल कोर्स है। और इसके साथ मैं गिफ्ट में देता हूँ 50 से 60 कैप्सूल टाइमिंग वाले। वो यारों दोस्त, आपको तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये कोर्स खाने के बाद, यारों दोस्तों को देने के लिए, ताकि उनको पता चले कि दवाई कैसे असर करती है। और उस कैप्सूल का 3 दिन तक असर रहेगा। वो कैप्सूल हम बिस्तरी से 10 से 12 घंटे पहले लेना है, क्योंकि वो केमिकल नहीं है कोई, वो प्योर देसी दवाई है। 10 से 12 घंटे पहले आपने वो कैप्सूल लेना हम बिस्तरी से, और उसका 3 दिन तक आपको असर रहेगा। और अल्लाह के फजल से आप फिर मुझे दुआएं देंगे। उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, कोई नुकसान नहीं है। ठीक हो गया? तो इंग्लिश गोलियों से परहेज़ करें। मैं आपको रोक रहा हूँ, गुर्दे को नुकसान देती हैं इंग्लिश जो मेडिकल है की गोलियां हैं, जो भी है, टीके हैं, जो भी हैं सेक्स के मतलब, वो आपको कमज़ोर करेंगे, आपके गुर्दे को ख़राब करेंगे। आप वो ना खाएं मेरा भाई, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। ये प्योर देसी दवाई है, इसका कोई नुकसान नहीं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। हर उम्र में, हर मौसम में ये मुफीद है। और ये आपके अंदर एक कुव्वत मदाफ़त वो पैदा करेगी जो आपको बुखार भी कभी नहीं चढ़ेगा, आपको कभी कोई बीमारी लगेगी। कुव्वत वो पैदा करेगी जो बीमारियों के साथ लड़ती है। कुव्वत मदाफ़त वो पैदा करेगी जो बीमारियों के साथ लड़ती है, और आप अंदरूनी तौर पर अपने आप को तगड़ा फील करना शुरू कर देंगे। तो मेरे भाई और, तो किसी जड़ी बूटी के बारे में पूछना हो, कोई नुस्खे बारे पूछना हो, कोई नुस्खा लेना हो, मेरा कॉल और व्हाट्सअप नंबर ऊपर आ रहा है, मुझे कॉल भी कर सकते हैं, आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। और हाफिज़ हकीम उमर फ़रूक आप यूट्यूब पर लिखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, घंटी का बटन भी दबाएं, लाइक शेयर भी करें, और ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये अल्लाह ने ज़िंदगी बहुत थोड़ी सी ज़िंदगी दी है। हम यहाँ हमेशा रहने नहीं आए, हम तो यहाँ मौत की तैयारी के लिए हैं। मौत के राही हैं हम सब, मौत के मुसाफिर हैं। जिसे मरना हो उसे भी कभी कुछ सूझा, यही तुझको दुन है रहूं सबसे आला। वो जीनत निराली, वो फैशन निराला, जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला। तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया। बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अजल तो तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया। कब्र के निशाने मिट जाएंगे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है। ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। अजल ही ने छोड़ा न किसरा न दारा, इसी से सिकंदर सफाते बिहारा। पड़ा रह गया सब यूं ही ठाट सारा। अल्लाह ताला फरमाते, जाओ उनकी शिकस्ता दीवारों से पूछो, उनकी टूटी फूटी गलियों से पूछो, इन कुवारों से पूछो कि तुम्हें रहने वाले कहाँ चले गए। तुम्हें तो बड़े शादियाने थे, तुम्हें तो बड़ी रौनकें थी, तुम्हें तो बड़े नफस्तियों वाले खूबसूरत नौजवान थे, तुम्हें तो बड़ी नखरो नाज वाली नाजुक सी औरतें थी, कहाँ चले गए। तो अल्लाह ताला फरमाते, तुम्हारे खुल के बात सामने आ जाएगी कि वो धोखे का जहान छोड़ गए और मट्टी के देश में जाके सो गए। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये हमारे साथ होने वाला है। जी चाहे या ना चाहे, दिल करे या ना करे, हम सबको एक दिन मौत के घाट उतरना है। इस मर जाने मिट जाने से पहले पहले हमने अल्लाह के दरबार में तौबा करनी है। ये दुनिया फ़ानी है, ये मच्छर का पर, रेत का पानी, मकड़ी का जाला, धोखे का घर, हाँ कोई नहीं बचा, ना रहना है। अल्लाह फरमाते, तुम ऐसे हो जाओगे जैसे दुनिया में आए ही नहीं थे। जैसे तुम दुनिया में आए, हमारे दादा परदादा, उनके अब्बा क्या है, कहाँ चले गए, ऐसे हो गए जैसे दुनिया में आए। ऐसे ही एक दिन हम हो जाएंगे कि जैसे दुनिया में आए ही नहीं थे। मेरे भाई और दोस्तों, हर फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हज़रत अली ने दफन किया और कब्र पर खड़े होकर आवाज़ दी, फ़ातिमा फ़ातिमा फ़ातिमा।
कोई आवाज़ नहीं आई। तो कहने लगे ये तो वही फातिमा थी जो मेरी एक पुकार पर सब छोड़कर उठ जाया करती थी, आज क्या हुआ, मैं पुकार पुकार थक रहा हूँ, महबूब जवाब ही दे रहा। फिर कह रहे मुझे पता चल गया यहाँ कोई दोस्ती बरकरार नहीं है, यहाँ बका है तो फना ही को बका है, बाकी किसी चीज़ को बका नहीं है। और फिर आने करीब मुझे भी एक दिन मौत का प्याला पिला दिया जाएगा, मुझे भी एक दिन मौत का जाम पिला दिया जाएगा। तो फिर ये मेरी दुनिया के मेले ठेले, ये मेरी दुनिया के यार दोस्त मालो मता मुझे क्या नफ़ा पहुँचाएंगे, हमें क्या जो तुरबत पे मेले रहेंगे, तहे खाक हम तो अकेले रहेंगे। नादान है, दीवाना है, दीवानी है, पागल है, मजनू है, जो इस जहां से जी लगा ले और इस जहां से जी लगाकर अब्दी घर को ठुकरा दे और अब्दी ज़िंदगी को ठुकरा कर ये दुनिया की 4 दिन की ज़ेबो ज़ीनत पर मर मिटे, इससे बड़ा कोई और दीवाना और दीवानी नहीं है। आज दुनिया से दीवानों से भरी पड़ी, घर बड़े पड़े, मोहल्ले बड़े पड़े, मौत सर पे दस्तक दे रही और ये ज़िंदगी ऐसे गुजर रही जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया अफ़ा हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम आबसा, क्या ख्याल है मरने के बाद कोई नहीं पूछने वाला। सर में दर्द होता है तो परेशान बैठ जाते हो, मौत सर पे चली आ रही तो उसके लिए कभी कुछ सोचा नहीं। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह ने बहुत थोड़े से वक्त लिए हम भेजा है, हम अल्लाह के दरबार में तौबा कर लें, नाफरमानी को छोड़कर फरमा बरदारी का। अल्लाह ताला फरमाते मैं तुम्हें देखूंगा, तुम में से मुझे कौन राज़ी करता है और अपने मन को कौन राज़ी करता है। तो ज़िंदगी थोड़ी सी है, गुजर जाएगी। 50-60 साल की ज़िंदगी हम कितनी की नाफरमानी कर लेंगे, कितनी की नाफरमानी कर दे। तो अल्लाह ताला माफ़ करने फरमाया ज़मीन को काला कर दे, इतने गुनाह कर ज़मीन को काला कर दे, फिर उसकी तह जमाना शुरू कर, करता जा पहला आसमान, दूसरा आसमान, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, मेरे अर्श तक लगा दे। इतने गुनाह कर, इतने सलाम बंदा गुनाह कर नहीं सकता। अल्लाह का हौसला ज़रा देखें, अल्लाह कहता गुनाह कर ला, फिर मुझसे एक दफ़ा कहते या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मैं सारे ही माफ़ कर दूंगा, मुझे परवाह भी नहीं होगी। फरमाया कोई है ऐसा बंदा माफ़ करने, फरमाया जो बंदा तौबा कर ले, इल्ला मन ताब व आमन व अमिल अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। फरमाया जो बंदा तौबा कर ले, ये देख या अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह ताला पिछले सारे ही माफ़ कर दूंगा। तौबा करने के बाद फिर क्या फरमाया, फिर अच्छे अमल करना शुरू कर दे। अच्छे अमल क्या है, नमाज की पाबंदी हो, कुरान की तिलावत हो और झूठ छोड़ दे, हराम छोड़ दे। फरमाया जो तुमने पिछले गुनाह किए मैं सारे ही नेकियों में तब्दील कर दूंगा। कोई है ऐसा बादशाह जो माफ़ भी करे और ता भी करे। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह ने बहुत थोड़ी सी ज़िंदगी दी है, ये थोड़ा सा वक्त है हमारे पास, गुजर जाएगी, चाहे नाफरमानी गुजार लें चाहे फरमाबरदारी में गुजार लें। तो इसलिए मेरे भाई अल्लाह की तरफ रुजू करें, हम अल्लाह की तरफ वापस लौटें। जितने गुनाह हुए हैं, जितने कोई आँखों ने गलत देखा है, इन कानों ने गलत सुना है, ये ज़बान गलत बोली है, इस दिलो दिमाग में किसी के साथ गलत सोचा, गलत तकरीब करी, अल्लाह से माफ़ी मांगे, वो भी ऐसा माफ़ करने वाला है। दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह फरमाया या दाऊद बश्शिरिल मुजरिमीन, ए दाऊद जाओ गुनाहगारों को खुशखबरी सुना दो। दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहा या अल्लाह गुनाहगारों को खुशखबरी तो तेरे नेक बंदों को होती है। फरमाया नहीं, जाओ उन्हें कह दो गुनाहगारों को कि तुम्हारा बड़े से बड़ा भी गुनाह माफ़ करना मेरे लिए कोई मसला नहीं है, तुम तौबा कर लो मैं सारे ही माफ़ कर दूंगा। फिर दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहा या दाऊद तू ही बता, जब मेरा नाफरमानों से ऐसा प्यार है तो फरमाबरदारों से कैसा प्यार हो, कैसा प्यार। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह फरमाते तेरी ज़िंदगी में मेरे अहकामात पे चलेंगे, मैं तेरी ज़िंदगी में सुकून पैदा कर दूंगा, तेरी ज़िंदगी में राहत पैदा कर दूंगा, तेरे रिज़्क़ में आसानी पैदा कर दूंगा और तेरे सीने में मैं एक खुशी पैदा कर दूंगा, एक नूर पैदा कर लूँगा। अल्लाहुम्मा जल फ़ी दमी नूरा, फ़ी लहनी नूरा, फ़ी ऐनी नूरा, फ़ी जसदी नूरा। फरमाया तेरे अंग अंग में मैं नूर भर दूंगा, तेरे चेहरे पे एक सुकून रख दूंगा। फरमाया मेरे अहकामात पे चल के तो देख, मेरे अहकामात चल कर दो। तो मेरे इन्नी इलाका मुहिब्बुन फबी हक़्क़ी अलैका कुल्ली मुहिब्बा, ए मेरे बंदे अल्लाह ताला मैं तुझसे मोहब्बत किए बैठा हूँ, मेरे हक़ की कसम तू भी तो मुझसे मोहब्बत कर, तू भी तो मुझसे मोहब्बत कर। तो मेरे भाई और दोस्तों, जितनी ज़िंदगी अल्लाह की नाफरमानी में गुजर गई, जितनी ज़िंदगी ने इन आँखों ने गलत देखा, इन कानों, आज अल्लाह से तौबा कर लें, अल्लाह से सुलह कर लें, देखें फिर अल्लाह की रहमत कैसे आती। 2 चीज़ें अल्लाह मांगने के बगैर नहीं देता। एक अल्लाह कहते मेरी मोहब्बत, एक मोहब्बत और हदायत। अल्लाह मांगने के बगैर पैसा दे देगा, दुनिया दे देगा। फरमाया मेरी मोहब्बत और हदायत में मांगने के बगैर नहीं देता। अल्लाह से मांगो या अल्लाह अपनी मोहब्बत मेरे दिल में पैदा कर दे, या अल्लाह अपनी मोहब्बत मेरे दिल में पैदा कर दे, या अल्लाह अपनी मोहब्बत मेरे दिल में पैदा कर दे, और या अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मेरे दिल में पैदा कर दे, और अहले बैत की मोहब्बत मेरे दिल में पैदा कर दे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये हसन हुसैन मेरी आंखों की ठंडक है, ये मेरे बाग के फूल हैं। या अल्लाह जो इनसे मोहब्बत करे
تو بھی ان سے محبت کر، اور یا اللہ جو ان سے بغض رکھے تو بھی اس سے بغض رکھ۔ اہل بیت کی محبت ہمارے، اہل بیت کی محبت کے بغیر ایمان ہمارا مکمل نہیں ہوتا۔ یہ اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جتنی مرضی نمازیں پڑھ لو، جتنے مرضی روزے رکھ لو، جب تک اہل بیت کی محبت نہیں ہے آپ کے دل میں، یہ کوئی قبول نہیں ہے۔ اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی محبت اپنے دلوں میں ہو، اور اللہ کے احکامات مان کے زندگی گزاریں۔ دیکھیں اللہ زندگی میں سکون کیسے پیدا کرتا ہے، دیکھیں اللہ آپ کی پریشانیاں کیسے دور کرتا ہے، دیکھیں اللہ آپ کے جسم کو کیسے خوش رکھتا ہے، آپ کے دماغ کو کیسے خوش رکھتا ہے۔ نور ہی نور کر دے گا اللہ، سارا نور ہی نور، تیری زندگی میں برکت ہی برکت ڈال دے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، توبہ سارے کر لیں، توبہ ٹوٹ جائے پھر کر لیں، توبہ ٹوٹ جائے پھر کر لیں۔ فرمایا 100 دفعہ تیری 1000 کروڑ دفعہ توبہ کر کے پھر توڑ لی ہے، میرے لیے ایسے جیسے پہلے دفعہ توبہ کریں تو صحیح ہے نا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ جل شانہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔